Okay, so in last lecture, that is in yesterday's lecture, we studied about historiography development in the West, and उसमें हमने first content देखा था, that was 1.1 tradition of historiography. मतलब we have just seen the introduction part. Now we are going to look further. Okay, तो हमने देखा या हमने क्या study किया, that we will revise and then we'll proceed further. Okay. So what we studied, that what is historiography? The writing of critical historical narrative is called as historiography. Then we studied that how historical research have been carried out and what is the object, what is the purpose for carrying out such historical research. Yes or no? And we understood that क्यों किया जाता है historical research, ताकि हम लोग chronology समझे, किस चीज का chronology of the past events and their interconnections, है ना? पास्ट में जो इवेंट्स हुए वो कैसे हुए, क्यों हुए, इस बात को समझने के लिए हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं. तो हिस्टोरिकल रिसर्च करने का जो मेथड है, क्या जैसे साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है वैसे ही हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि फिजिकल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस, ये लेबोरेटरी में किया जा सकता है एंड वी कैन come to a conclusion. Yes or no? But whereas historical research is concerned, we cannot do laboratory method of research. Okay. So laboratory method of experiments and observation is possible or is been applicable only for physical and natural sciences. It will not be applicable for history or historical research. So sir, is there any method of historical research? Yes, my dear students, you can see below ना, नीचे देख सकते हैं सब लोग कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड करके कुछ तो दिया है, लेकिन वो पढ़ने के पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा. ठीक है, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? लेट्स सी. सबका ध्यान स्क्रीन पे. ओके, so the concept says something like this. What it says, it says, to begin we need an expert who knows the language and the script of a historical document in order to read it and understand its meaning. So when we talk about historical research, we need a person, we need an expert, my dear students, who knows the language. अलग अलग भाषा है उसको आनी चाहिए, अलग अलग स्क्रिप्ट मतलब जो रिटन फॉर्मेट्स है वो उनको पता रहनी चाहिए. Yes, and he should be able to understand the meaning of all the scripts. Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बताया था कि कोई डॉक्यूमेंट रियल है कि नहीं ये भी तो चेक होना चाहिए. तो ओनली एन एक्सपर्ट कैन एनालाइज एंड कम टू अ कंक्लूजन whether the given document is genuine or it's a fake document. Okay, how they will come to know? There is some criteria, some process. क्या process है देखो. Lettering style, author's style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps of authority. These are some of the elements by which we can understand whether a particular document belongs to so and so period or it's a fake document. बात समझा क्या? अब जैसे कि ये जो पेज तुम्हारे सामने है, if I say that this page belongs to 2000 years before, 2000 साल पहले का पेज है, will you believe? नहीं, तुम बोलोगे सर 2000 साल पहले थोड़ी ना टाइपिंग इन्वेंटेड था, है कि नहीं? तभी तो लोग लिखते थे, पता भी नहीं लिखते थे कि नहीं. राइटिंग डेवलप हुआ था क्या? वो क्वेश्चन मार्क है. गेटिंग मी? सो वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, जस्ट अ मिनट. So what I explained just now is, in order to understand or in order to do historical research, we need an expert person, and this expert person should be the one who should have knowledge about different languages, and he should also have knowledge about different scripts. अलग अलग स्क्रिप्ट्स का भी उसको नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो पता लगा सके कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ये ऑथेंटिक है या फेक है, मतलब रियल है या फेक है. ऑथेंटिक मीन्स रियल. Okay, authentic, real. So how a person or how a expert can analyze whether a particular document is real or fake? It has to be with certain criteria. The criteria will be like a lettering style, author style of writing, manufacturing date, type of paper, stamps of authority, etc. By these are the criteria by which a
document can be understood whether it is a real or a fake. Such a document is further scrutinized by an historian with the help of relevant historical references. So, my dear students, if a particular document is there, we have to cross verify it whether it is genuinely of that particular period or not. If I say that I have a letter of Adolf Hitler ने जो लेटर लिखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो वो है मेरे पास करके, तो मैं अगर वो लेटर दिखाऊंगा तो हाउ कैन एन हिस्टोरियन इंटरप्रिटेट दैट वेदर दैट लेटर इज रियल और फेक? एक हिस्टोरियन को कैसे समझेगा? तो हिस्टोरियन क्या करेगा, वो रेलेवेंट चीजों को देखेगा उस टाइम पे और जो चीजें हैं उनको एनालाइज करेगा और देखेगा कि ये लेटर सच में लिखा गया कि नहीं. ओके, then a conclusion will be derived. Okay, this letter is real or this letter is fake. Okay, so relevant historical references has to be checked. So say for example, if you are in a school, ठीक है, तुम स्कूल में हो और तुम स्कूल में गए हो कि नहीं गए हो, ये चेक करना है तुम्हारे पेरेंट्स को. ठीक है, तुम बोलोगे गए थे हम तो रेगुलर स्कूल जाते. टीचर बोलेगी नहीं, ये रेगुलर नहीं आता. हाउ विल वी कम टू नो? बताओ. What will attendance sheet. Attendance book. Simply by checking the attendance sheet we can come to know that whether a particular person. तो वो क्या हुआ, वो relevant document हुआ for reference. Okay, समझा सबको? अब जैसे कि एग्जाम में तुमको मार्क्स आए है कि नहीं, you show the report card to your parents. You don't show the paper to your parents. You show the report card. तो रिपोर्ट कार्ड में जो मार्क्स मिले हैं तुमको, सब सब्जेक्ट्स में 90 अबव मिले, पेरेंट्स टेंशन में आ गए, ऐसे कैसे पॉसिबल है, तेरे को कैसे क्या 90 के ऊपर मिलेगा, तेरा तो कैपेसिटी 40 का भी नहीं है, तेरे को कैसे 90 मिल गया? तो डाउट आता है. तो डाउट को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है? व्हाट विल बी द रेफरेंस? द पेपर विच यू हैव एक्चुअली रिटन इज अ रेफरेंस. ओके, तो स्कूल में जाओ, टीचर को रिक्वेस्ट करो कि इसका पेपर दिखाया जाए. टीचर ने पेपर दिखाया, मार्क्स अगर वहां पे प्रॉपरली है तो यू आर सेइंग व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू. यस, सही बोल रहा हूं मैं? तो रेफरेंस चेक करना जरूरी है कि नहीं है? व्हाट डू यू से? जरूरी है. जरूरी है. Okay, dear students. Okay, so I'll give you time to go through this paragraph and see if any doubt is there. फिर हम आगे बढ़ेंगे. So next what we can see, my dear students, is historical research method, है ना? अब जैसे कि हमने देखा कि साइंस को स्टडी करने के लिए द मेथड इज डिफरेंट, है ना, दैट इज लेबोरेटरी मेथड, बट हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए द मेथड इज डिफरेंट. ओके, so we have to see some certain criteria or certain parameters by which historical research method has been done or historical research has been done. Okay, तो चलो देखते हैं एक एक करके, और कहीं पे भी कुछ डाउट लगा तो यू कैन आस्क मी. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट बीन सेट? पहले पॉइंट पे देखो, एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करो, उसको क्रॉस चेक करो विद द रेफरेंसेस, है ना. मैंने ये बताया था कि रेफरेंसेस से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस चेक कर सकते हैं. दैट वुड बी अ गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट अ पर्टिकुलर डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कोई भी चीज रहेगा उसका रिसर्च करने के लिए ये चीज बहुत यूजफुल हो सकता है कि उसको क्या करें हम लोग, सबसे पहले क्रॉस चेक करें. क्या करें? क्रॉस चेक, है ना. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, collecting historical information, highlighting the processes that led to historical transitions, carrying out comparative analysis. तो यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर 3 स्टेप बताया गया. सबसे पहले क्या करना है? कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है पास्ट का, उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है. ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर दूं, मैं बोलता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तुम बोलोगे सर नहीं हुआ था, है ना. तो मुझे प्रूव करना है कि नहीं, सच्ची में बच्चे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन कलेक्ट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड के कुछ ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन, माहिती मैं क्या कर सकता हूँ? कलेक्ट कर सकता हूँ. देन व्हाट आई कैन डू? then highlighting the processes that led to the historical transitions. So I can make a chronology, I can make a channel
जिससे मैं बता सकूं कि देखो ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था, उसके बाद में ऐसा हुआ, इस वजह से दिस पर्टिकुलर थिंग हैज हैपेंड। वर्ल्ड वॉर होने के वजह से कुछ, वर्ल्ड वॉर होने का रीजन होगा ना कुछ, तो ऐसे थोड़ी ना कि मन किया और तुरंत बॉम्ब बिम डाल दिया और हो गया, नहीं, देयर मस्ट बी सम रीजन, so that I can put in order. Okay, that is the second. And carrying a comparative analysis, I can make a comparative analysis कि देखो so and so reasons were there, that was the particular reason for the particular happening, ये कारणों की वजह से ये चीज हुआ करके, तो like this process can be carried out. ओके, एंड फाइनली, मतलब इतने में भी तुम यकीन नहीं करोगे सर इससे क्या हम यकीन करेंगे, नहीं, तो देर आर फर्दर मोर मेथड्स ना माय डियर स्टूडेंट्स, और भी स्टेप है आगे, और स्टेप क्या है देखते हैं। आर वी क्लियर विद द फर्स्ट 2 स्टेप्स? पहले 2 स्टेप से क्लियर है क्या हम लोग? एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, आर वी डन? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, कि जो भी रिलेटेड रेलेवेंट रेफरेंसेस रहेगा उसको क्या करो, एग्जामिन करो, चेक करो, स्क्रूटिनाइज करो, ठीक है, और फिर क्या करना है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करो, दैट देन वी हैव टू डू लाइक रिसर्च ऑन द हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रांजिशंस मींस चेंजेस, ट्रांजिशंस मींस चेंजेस, and we can carry out a comparative analysis. Okay, हम क्या करेंगे, comparative analysis carry करेंगे. Let's see the third step, understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method. तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम उस समय और उस जगह का अलग अलग रेफरेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एज आई सेड कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तुम बोल रहे हो कि नहीं सर हमको यकीन नहीं है करके, तो व्हाट आई कैन डू माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं उस समय का उस जगह का कोई चीज तुमको एज अ प्रूफ करके दिखाऊं, तो तुम मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे, you will agree to the event. Now what is the evidence I can get? I can get the newspaper of that particular period my dear students. मैं 1914 का, 1915 का, 1916 का क्या कर सकता हूँ, न्यूज़पेपर्स तुमको दिखा सकता हूँ। तो उस न्यूज़पेपर्स में क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, उन न्यूज़पेपर्स में मेंशन किया रहेगा कि सो एंड सो डेट को सो एंड सो कंट्री ने सो एंड सो कंट्री के ऊपर क्या किया था, बम्बार्डिंग किया था, वॉर डिक्लेयर किया था, यस और नो? यस, ये न्यूज़पेपर में रहेगा। ये न्यूज़पेपर आज छापा हुआ, कल छापा हुआ है क्या? नहीं, ये 1914 में छापा था, 1915 में छापा था, तब का न्यूज़पेपर। आई कैन शो इट टू यू, देन यू वुड बिलीव ऑन व्हाट आई सेड, यस और नो? करेक्ट? Yes. Yes, sir. ओके ओके, यू कैन नॉड योर हेड, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, नॉड करोगे तो भी चलेगा। चलो, विल सी द फोर्थ पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। देखो, कोई भी चीज होता है तो उसका क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है ना? क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली जब कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी एविडेंस सिखाया जाएगा, तो उसको क्या करना जरूरी है, यू हैव टू फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट मतलब क्या, मेक। फॉर्मुलेट मतलब मेक रेलेवेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्या करना है तुमको, क्वेश्चंस फॉर्म करना है। यू हैव टू फ्रेम सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। ओके, दैट इज द फोर्थ प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ना फॉर्मुलेटिंग का मतलब तो समझ गया है सबको, फॉर्मुलेटिंग मीन्स टू मेक, है ना? हाइपोथेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? Hypothesis means assumptions. Okay, hypothesis, assumptions. We have to make some kind of assumptions. Okay, लेकिन सिर्फ assumption करने से काम नहीं होगा,
किए हुए एजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? अगेन वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमने जो एजम्पशन कंक्लूड किया है या फिर कैरी किया है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा विद द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अलग अलग और भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है ना, हमने पढ़ा है ना सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मटेरियल सोर्स है, ओरल सोर्स है, तो उन सोर्सेज के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। क्रिटिकली एग्जामिन करना अगेन मीनिंग इज सेम, चेक करना पड़ेगा कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं। अगर ये कंप्लीट होता है, इफ दिस ऑल प्रोसेस इज बीन कैरिड आउट, देन वी हैव कंक्लूडेड और देन वी हैव डन अ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हमने क्या किया? उस पर्टिकुलर चीज, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हिस्टोरिकल रिसर्च किया। समझ में आया सबको? ओके, तो लेट्स रिवाइज। रिवाइज करने के पहले एक बार सब लोग गो थ्रू कर लो, फिर हम रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। Yes, students, you can ask me doubt from historical research method if you are having. हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड से कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। No doubts? If doubt is not there, we will revise and then we'll proceed further. Okay, so what we studied just now is historical research method. हमने historical research method पढ़ा। ये क्या है सर? हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए जो प्रोसेस है उसी को हमने स्टडी किया। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको बोला गया है कि ऐसे ऐसे करोगे तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च है करके। तो सबसे पहले हमने देखा एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है? एग्जामिन करना है। क्या करना है? एग्जामिन। एग्जामिन मतलब चेक करना है। फिर हमने क्या देखा कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, है ना, फिर हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस जो हुआ उसको चेक करो और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करो, कंपैरिजन करो उस समय का किसी और इवेंट के साथ में। ओके, उस इवेंट का किसी और इवेंट के साथ में, इस सच में फिर पता चलेगा कि ओके ये इवेंट सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना, दैट वी कैन कम टू नो। देन नेक्स्ट क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड विथ रेफरेंस टू द टाइम एंड स्पेस ऑफ अ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट, कि उस समय में ऐसा कोई इवेंट हुआ था क्या, उसका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाओ और देखो कि सच में ऐसा हुआ था कि नहीं। वी कैन यूज द रेलेवेंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स ना, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हुआ था तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द न्यूज़पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड एज अ रेफरेंस मटेरियल। यस, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चंस रेस करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म करो कि हाँ अगर ये इवेंट हुआ था तो ये इसके बारे में बताओ, मीन्स उस टाइम पे का इकोनॉमिक पोजीशन क्या था, कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, सर कितने लोग मारे गए थे, सर उसमें सिविलियंस कितने थे, सर उसमें सोल्जर्स कितने थे। ऑल दिस क्वेश्चंस शुड कम इन योर माइंड और इट शुड कम इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज डूइंग हिस्टोरिकल रिसर्च। आज समझा क्या मेरा? है ना, जिस जो रिसर्च कर रहा है तो वो रिसर्च से रिलेटेड। देखो तुम रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करने के बाद में बहुत सारे लोग तुमको क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमने ये कैसे किया करके। तुमने पहले से ही उन क्वेश्चंस का क्या करना है? अपने हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम करके उसका आंसर्स फाइंड आउट करके रखना है ताकि तुम्हारे रिसर्च के ऊपर कोई डाउट ना करे। गेटिंग मी? यस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाँ, फिर अपना क्या करो, एक थीसिस, एक थियरी, एक एजम्पशन बनाओ। ठीक है, और फिर चेक करो विद द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कि तुमने जो बनाया है फाइनल कंक्लूजन, तुमने जो रिसर्च किया है ये सच में सही है या नहीं। मतलब इतना सब करने के बाद में भी एक फाइनल चेक करो, बराबर है कि नहीं। मतलब डूइंग आफ्टर ऑल दोज स्टडीज, आफ्टर डूइंग ऑल दोज वर्कआउट, देन ऑल्सो फाइनल कंफर्मेशन भी एक बार करके देखो विद द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर। देखो वर्ल्ड वॉर हुआ था नहीं हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारे डाउट है। तुमको मैं बताता हूँ, कुछ साल पहले माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यू इयर्स बिफोर, कल्याण तो सबको मालूम है ना, हम वहीं पे रहते हैं। कल्याण में, कल्याण ईस्ट में वी हैव अ प्लेस कॉल्ड एज शक्तिधाम, कोलसेड़ी के यहाँ पे, पता है तुमको?
नहीं पता, ठीक है, कभी जाया करो तो पता चलेगा। इट इज नियर टू द स्टेशन, कोलसियाडी स्टेशन के तरफ आता है, शक्तिधाम करके जगह है। तुम यकीन नहीं करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यू इयर्स बैक व्हेन देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन वर्क टू बी कैरिड आउट, वहां पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था और वहां पे वर्कर्स को कुछ तो मिला। कैन एनीबडी गेस व्हाट द वर्कर्स गॉट ओवर देयर? यस माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे वर्कर्स को ग्रेनेड मिला। ओके, सबरीश raised the hand but I answered. Okay, तो ग्रेनेड मिला माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट ग्रेनेड वाज अ लाइव ग्रेनेड, मतलब वो फट सकता था, ऐसा ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड कहाँ पे बनाया था? ग्रेनेड जर्मन मैन्युफैक्चर्ड था। अब जर्मनी ऐसा तो नहीं है कि कल्याण के बाद में आता है, ऐसा है क्या? No, sir. No. So my dear students, a live grenade was been discovered at that particular place. फिर उसको हाजी मलंग के साइड पे लेकर गए मिलिट्री वाले, और उसको फिर उसको एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर किया तो यहाँ तक उसका आवाज सुनाई दिया था, बट हमको नहीं पता था कि वो बम का आवाज है करके। हमने सोचा रहेगा कुछ तो ऐसे आवाज है करके। सो अब मुझे बताओ, ये बॉम्ब, ये ग्रेनेड तुमने छुपाया था? नहीं। मैंने छुपाया था? नहीं। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे माय डियर स्टूडेंट्स कोई तो सोल्जर के हाथ से गिर गया रहेगा, है ना, या फिर किसी ने फेंका रहेगा और वो ब्लास्ट नहीं हुआ रहेगा, तब जाके वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। बट इट गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर दफन हो गया वो। लेकिन सोचो, आज मतलब कुछ साल पहले जाकर वो मिला। कभी का है ये ग्रेनेड? ये मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब 1939 से 1945 के पीरियड का है। 1939 से 1945 के बीच के पीरियड का है ग्रेनेड। तुम बोलोगे सर लेकिन कल्याण में कैसे मिला, है ना, क्वेश्चन रेज होता है ना। तो मैं तुमको बताता हूँ उसका थोड़ा सा इतिहास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो उल्लासनगर, उल्लासनगर सबको पता है, बराबर है कि नहीं? The Ulhasnagar was like in those days, in the past, it was actually a military camp. मिलिट्री लोगों का कैंप हुआ करता था। ओके, इसीलिए देखो उल्लासनगर को क्या बोलते हैं, कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, कैंप नंबर 3, है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कोई जगह का नाम ऐसा है क्या? हम ऐसा बोलते हैं क्या, काटेमनेली नंबर 1, चिंचपाड़ा नंबर 2, हनुमान नगर नंबर 3, ऐसा बोलते हैं? नहीं। वाई उल्लासनगर इज बिन कॉल्ड ओनली विथ नंबर्स? उल्लासनगर को क्यों नंबर से जाना जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कैंप ओवर देयर। मिलिट्री कैंप हुआ करता था, और कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, कैंप नंबर 3, कैंप नंबर 4, कैंप नंबर 5, ऐसे 5 कैंप्स में डिवाइडेड था उल्लासनगर। और यहाँ पे कौन रहते थे? मिलिट्री लोग रहते थे, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस था वो। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो मिलिट्री लोग यहाँ पर उनका आना जाना चलता था, बिकॉज कल्याण पता है तुमको, रेलवे था, है ना, तो कोल वगैरह आते थे जाते थे, तो पेट्रोलिंग वगैरह करते रहेंगे। उस टाइम पे गलती से गिरा रहेगा या छुपाया रहेगा या क्या पता नहीं, बट विथ XYZ रीजन वी वर नॉट देयर एट दैट टाइम ना, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा फिर, है ना, कि वो ग्रेनेड वहां पे कैसे आया करके। आया वर्ल्ड वॉर के टाइम का है ये पता चल गया सिंपली बाय रीडिंग अ न्यूज़पेपर, लेकिन वो ग्रेनेड वहां पे क्यों आया, इसके ऊपर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, है ना। तो उसमें हमको ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। ओके, हाउ मेनी इयर्स अगो इट वाज फाउंड? आई थिंक सो, एग्जैक्टली नहीं पता, बट इफ यू सर्च इट ऑन गूगल, ओके, ग्रेनेड फाउंड इन कल्याण ईस्ट, so you will get the article. Okay, okay, so the date is 27th November 2011. Okay, and you can see that Mumbai Mirror में न्यूज़ फ्लैश हुआ था। ओके, 27th November 2011, और इसको नांदेली में जाकर एक्सप्लोर किया गया था। ट्रस्ट मी, मैं जो बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ, ठीक है। ओके,
Next question is, sir, you said that. Okay, Pragati answered it also. Pragati, Yes, sir. how you came to know? Sir, my sister searched it on Google. Wow. मतलब सिस्टर भी लेक्चर अटेंड कर रही है मेरा. Oh my God. No, sir, she was sitting there. अच्छा अच्छा अच्छा. Thank you so Yes, much. yes, sir. Yeah, to your sister actually. And good question been asked. Okay, the next question is, sir, you said that military camps were there in Ulhasnagar before. How many years ago they were staying? So as I said na, it must be during the period of Second World War. So 1939 से 1945 का period में you can confirmly say that there were military camps. कब तक था? Again we have to do historical research. ये समझ में आ रहा है तुमको रिसर्च क्यों करना पड़ता है? तुम्हारे पास हर इस पे क्वेश्चन है. अगर अगर मैं ऐसे ही बोलूं, मैं बोल दूं हाँ 40 साल पहले था, 50 साल पहले था, तो दैट वोंट बी अ रेलेवेंट आंसर. मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, बराबर है कि नहीं? तो हमको क्या करना पड़ता है? क्रॉस चेक करना पड़ता है. अभी मैंने जब बोला, देखो मुझे पता था कि वो कई कई साल पहले मिला है ग्रेनेड, बट हमने क्रॉस चेक कहाँ से किया? हमने क्रॉस चेक किया उस टाइम पे के न्यूज़पेपर आर्टिकल से. आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम लोग तुरंत विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन. तो वी जस्ट चेक्ड, तो पता भी चला कि मुंबई मिरर में ये न्यूज आया है करके. तो यस, द फैक्ट्स हैव बीन रेलेवेंटली प्रूव्ड. एग्री? ओके, चलो देन विल प्रोसीड फर्दर. हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है. अब जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है ना, तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में एक ही मेथड नहीं है, देर आर फ्यू मोर मेथड्स ऑल्सो. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट अदर मेथड्स by which we can do historical research. Okay, चलो देखते हैं. Methods of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology. I'll give you meaning of each and every. पहले हम लोग रीड करके लेते हैं, हर टर्म का मैं मीनिंग बताऊंगा. Then you have archival science. Then you have manuscriptology. You have epigraphy, meaning तो दिया ही है, study of inscriptions. Then you have analysis of lettering style, linguistics, numismatics, that is study of coins. Then genealogy, that is study of lineage, etc. तो ये सब क्या है? ये भी मेथड्स है क्या करने का? हिस्टोरिकल रिसर्च करने का. चलो एक एक करके देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन. सबसे पहले है आर्कियोलॉजी. व्हाट डू वी मीन बाय आर्कियोलॉजी? दैट इज digging the earth. digging the earth. जमीन को खोदकर अगर हमको कोई चीज पता लगता है या रिसर्च कैरी करते हैं, तो दैट रिसर्च इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी. ओके, डिगिंग द अर्थ. देन वी हैव आर्काइवल साइंस. नाउ व्हाट इज आर्काइवल साइंस? आर्काइवल का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ important historical data. Storing of important historical data is called as archival science. तो मतलब बहुत जुने पुराने लेटर हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, इन सब चीजों को जहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो उसको स्टोर करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज आर्काइवल साइंस. ओके, ना ऐसी चीजों को ऐसे ही नहीं स्टोर कर सकते, खराब हो जाएगा, है ना? Then you have manuscriptology, that is to understand handwriting या handwritten documents. Handwritten documents. To understand handwritten documents. Okay, then we have epigraphy. उसका meaning is given just next to it, that is study of inscriptions. Inscriptions मतलब क्या? जैसे ये बाजू में दिया है देखो, yes, इस ये क्या है? एक पत्थर का टुकड़ा है
और उसके ऊपर कुछ तो ड्राइंग किया है। देखो ये यहाँ पे कुछ लोगों का सर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे उन्होंने कुछ तो होल्ड किया ऐसे दिखाई दे रहा है, और ये आगे वहाँ पे कोई तो एक पर्सन खड़ा है दिखाई दे रहा है। तो ये पत्थर के ऊपर किया है। दिस कैन बी डन ऑन रॉक्स, दिस कैन बी डन ऑन मेटल, ओके, दिस कैन बी डन ऑन क्ले, किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि कॉइन के ऊपर होता है, देखो कॉइन के ऊपर तुमने 4 हेडेड लायन देखा रहेगा, है ना, तो वो क्या है, दैट इज इंस्क्रिप्शन, एम्बॉसिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, दैट इज ऑल्सो अ हिस्टोरिकल मेथड। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस। Then you have numismatics, numismatics that is study of coins, कौन सा कॉइन कौन से टाइम का था, ये स्टडी करना, ये भी एक रिसर्च ही है ना, यस। देन यू हैव जीनेलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ लीनेज या लाइनेज। तो क्या है ये स्टडी ऑफ लीनेज लाइनेज क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव जनरेशंस अबाउ अस, हमारे पूर्वज है ना, हमारे जो लाइक फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, है ना, उनके बाद हम लोग आए ना, तो हम बॉटम पे नीचे हैं, ठीक है। इफ सपोज दिस इज अस, ठीक है, ये हम है, तो हमारे ऊपर हमारे मॉम और डैड, बराबर, डैड के मॉम और डैड के डैड, मॉम के डैड और मॉम के मॉम, बराबर, ये उनके फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ना। दिस इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ लिनेज या जीनेलॉजी, समझा? ये हम लोग अगर शिवाजी महाराज का देखेंगे तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनका जीनेलॉजी देखो, उनका स्टडी ऑफ लिनेज देखो, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत बड़ा फैमिली है। यस, हमारा भी फैमिली बहुत बड़े रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, चेक करके देखो कभी। मैं तुमको बोलूं, तुमको ज्यादा से ज्यादा तुमको तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का नाम पता रहेगा, उनके फादर और उनके मदर का नाम नहीं पता रहेगा। वेरी रेयर इट वुड बी दैट यू मस्ट बी नोइंग योर ग्रैंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड ग्रैंड मदर्स नेम। कभी पूछा, कभी सोचा? नहीं ना। तो ऐसा जीनेलॉजी बना के रखो अपना भी, बराबर है कि नहीं? हमको नहीं मालूम हम कहाँ से आए करके, तो कैसे चलेगा? यस, ओके। सो यस, आई फाइंड दिस टॉपिक टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ठीक है। ये हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा, दैट इज जस्ट द बैकग्राउंड, ओके। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, अभी अभी जो पढ़ा हमने उसको एक बार गो थ्रू करो। Okay, students, so just one doubt has come. Sir, in analysis of lettering style, what the historians can find? Okay, lettering style से historians को क्या information मिलेगा करके। मैंने कल तुमको बताया था हिस्टोरियोग्राफी का मतलब ही क्या होता है करके, ग्राफी, ग्राफोलॉजी, यस और नो? हैंडराइटिंग से या स्क्रिप्ट से, मैन्युस्क्रिप्ट से पता लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कितना आगे बढ़ सकता है। ऑल दिस थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड। द स्टडी इज कॉल्ड एज ग्राफोलॉजी, ओके। यू कैन सर्च इट फॉर इट इन यूट्यूब। नाउ हैंडराइटिंग, लेटरिंग स्टाइल से क्या पता चलेगा? अब मुझे बताओ, ये जो टेक्स्ट बुक विच वी आर स्टडिंग, you can see the letters now, you can see the alphabets, how it is printed, yes or no? It is very very proper and very very aligned, yes or no? If you check the newspapers of the past के न्यूज़पेपर्स चेक करो, तो तुमको ना जो लेटरिंग है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, इतना प्रॉपरली अलाइंड नहीं रहेगा। क्यों? तो क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रिंटर्स, जो प्रिंटिंग मशीन अभी अवेलेबल है, ये आज से 50 साल पहले अवेलेबल नहीं था। समझ रहे हो क्या? आज से 100 साल पहले अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पे का लेटरिंग स्टाइल अलग था। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया तो पता लगा सकते हैं कि ये
कौन से पीरियड का था करके, ये एक हो गया, ठीक है। और देखो अगर मैन्युस्क्रिप्ट रहेगा, हैंड रिटन रहेगा, तो हैंड रिटन से पता लगा सकते हैं ना, मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारी चीज पता चलते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज ग्राफोलॉजी। यस, दैट हु द पर्सन मस्ट बी हु हैव रिटन दिस थिंग, है ना। अब तुम बोले सर ये कैसे पता चलेगा कि किसने लिखा है, अरे उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टैम्प होता है, स्टैम्प, मोहर बोलते हैं ना, मोहर, है ना, साइन करना पड़ता है ना कोई भी डॉक्यूमेंट पे, तो बाय दैट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो लेटरिंग स्टाइल इज ऑल्सो लाइक अ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन। तो लाइक दिस यू कैन आस्क मी डाउट्स इन बिटवीन एंड यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम। ओके ओके, किसी और को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस, नो डाउट्स, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग टू हियर। पक्का कोई डाउट नहीं है? No doubt. No doubt. ओके स्टूडेंट्स, फाइन। तो आई होप कि आज का लेक्चर तुमको काफी अच्छे से समझ में आया। यस, and if at all you come across any doubt you need to ask me in the next lecture, correct? Okay, so just to inform you people that tomorrow and day after tomorrow, that is Saturday and Sunday, there won't be any lectures, कोई lectures नहीं रहेगा, ठीक है। and Monday onwards we will be starting with 2 lectures a day, ठीक है, 2 lectures शुरू करेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। ऐप का नाम क्या है? ETNX, विदाउट स्पेस, you have to go to Play Store and download the app so that you can get all the updates properly, okay।